सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the a lot of chemical properties regarding to alcohol. Now the time to discuss about the third important property, that is the just your elimination reaction, which is very important. So this is third property, elimination reaction. If we will go with the just elimination reaction, then there are a lot of important properties regarding to elimination reaction. First of all, we'll go with the dehydration. This is the first property, dehydration. You can say what is the meaning of dehydration? Just you can say removal of water molecule is called as just dehydration. So regarding to dehydration, you can say it's a removal of H2O, water molecule is called as dehydration, and this is the best example regarding to beta elimination reaction. Beta elimination reaction के regarding अपने आप में अच्छा example है, and as we all know that just elimination reactions are also known as E reactions. पर्टिकुलर इनको ई रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें आप लोग पर्टिकुलर जानते हैं कि अगर E1 रिएक्शन की बात करें तो यहां E1 रिएक्शन होगा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, और E2 रिएक्शन जो होंगी दैट विल बी एज अ 1 डिग्री अल्कोहल. This was about the just E1 and E2 reaction. These are the part of the elimination reaction as a E1 and E2. Now, if we go with the just dehydration reaction, then conditions for the use of dehydrating agent for alcohol, this is the most important thing कि आपके पास में अल्कोहल के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो यूज करेंगे, बट आप कौन सा यूज करेंगे और किस कंडीशन में यूज करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इफ यू गो विद द जस्ट फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अल्कोहल इज इन लिक्विड स्टेट, पर्टिकुलर अल्कोहल आपके पास में लिक्विड स्टेट में हो तो हम कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम में ले सकते हैं. उस पोजीशन में आप ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, it's a great dehydrating agent. Concentrated your H3PO4, phosphoric acid, and we can use just phosphorus pentaoxide also, P2O5 भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर व्हेन अल्कोहल इज इन लिक्विड स्टेट. इसकी कंडीशन सेम बात करें तो पर्टिकुलर व्हेन अल्कोहल इज इन वेपर स्टेट, अगर आपके पास में अल्कोहल वेपर स्टेट में हो तो आप पर्टिकुलर क्या यूज कर सकते हैं. इन दैट केस देयर आर टू इंपॉर्टेंट जस्ट reagents which we can use. One of these is your alumina, Al2O3, and another is your thorium oxide, THO2, and another we can use aluminum sulfate also, Al2SO4 whole thrice. These are used as a dehydrating agent. Now the time to discuss about the just reactivity for this reaction. We can use just reactivity sequence for the alcohol is 3 degree alcohol faster, 2 degree slower, 1 degree slowest reaction देगा, because of by the removal of OH group here will formation of the 3 degree carbocation which is more stable. This was regarding to the reactivity. Now the time to discuss about example. Suppose this is the CH3CH2OH and ethanol as a 1 degree alcohol can be represented as follows. This is the H, this is alpha, and this is the beta carbon. That's why we are going to take here
beta elimination reaction because removal of hydrogen will be from beta position. This is the removal of H2O when we are going to take just concentrated H2SO4. Temperature 433 to 443 Kelvin temperature. Here will formation of ethene as a lower alkene from 1 degree alcohol as a ethanol. So this is the ethanol as 1 degree alcohol. Now the time to discuss about the just 2 degree alcohol. If we take just 2 degree alcohol, then again it will just elimination reaction like this. Again here will beta elimination because of this is the alpha and this is the beta carbon. This is the propane 2-ol, propane 2-ol as a 2 degree alcohol. So here will formation of under similar condition propene. Here will formation of the propene and this is the removal of H2O. This is the propene. And if we go with the just 3 degree alcohol as a 2-methyl propane 2-ol, this is the 2-methyl propane 2-ol, we can isolate the beta hydrogen as follows. So here will formation of highest alkene as a 2-methyl propene under similar condition. This is the CS3, this is the CCS3, double bond CS2 and this is the H2O. This is 2-methyl propene. 2-methyl propene as a just from the 3 degree alcohol and it is highest alkene regarding to just elimination of the water. So this was about the initial part of the just dehydration regarding to alcohol. अच्छे से पढ़े, हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखे because this is very important. इस वाले वीडियो में हर एक रिएक्शन अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो टेक इट सीरियसली. And dehydration reaction is also important. So if we go with this reaction dehydration, then there is a lot of important thing. इसी में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ही. ये था आपके पास में फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीक्वेंस 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. तीनों के लिए बात कर चुके हम लोग. पर्टिकुलर 1 डिग्री अल्कोहल से लोएस्ट एल्कीन, 2 डिग्री अल्कोहल से हायर एल्कीन और 3 डिग्री अल्कोहल से हाईएस्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो this is the mechanism regarding to ethanol. We will take the example mechanism. mechanism में बात करें तो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में आपके पास H2SO4 है. नो डाउट ये डिसोसिएट होगा कुछ इस टाइप से H प्लस और HSO4 माइनस में. इसी स्टेप में इथेनॉल पर कुछ हाइड्रोजन का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कुछ इस टाइप से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा और आपके पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहेंगे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, IUM सफिक्स यूज करते हैं. इसी के सेकेंड स्टेप की बात करें तो CS3, CS2OH और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन और जस्ट यू कैन से प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां से ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा. ये वाला स्टेप आपके पास में स्लो होता है. सो हियर विल फॉर्मेशन ऑफ
ये डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और H2O का कंप्लीटली एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, इथाइल कार्बोकेटायन प्लस ये H2O बाहर निकल गया। ये था आपके पास में सेकेंड स्टेप। इसी में थर्ड स्टेप की बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में आता है कुछ इस टाइप से कि इस स्टेबिलिटी के लिए इथाइल कार्बोकेटायन नेबरिंग कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये हाइड्रोजन से विड्रॉ करके और H प्लस आयन को लूज कर देगा एंड चेंज कर देगा पर्टिकुलर एल्कीन में, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर लोअर एल्कीन एज ए एथीन एंड दिस इज द H प्लस। और ये H प्लस वापस से यहाँ HSO4 माइनस के पास आएगा और H प्लस रिएक्ट करके H2SO4 दे देगा, मीन्स ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। पर्टिकुलर बात करें तो इफ देयर इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियोपेंटाइल अल्कोहल हो अगर इसी रिएक्शन में, देन रिएक्शन विल प्रोपेगेट, देन रिएक्शन विल, ये लीजिए इसको शो कर दे कुछ, neopentyl alcohol, then reaction will according to 1,2 shift 1,2 मिथाइल शिफ्ट कह सकते हैं एंड सेट जेफ रूल, उस पोजीशन में 1,2 शिफ्ट होगी और एल्कीन का फॉर्मेशन सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। सो बात करें तो दिस इज द नियोपेंटाइल अल्कोहल CH3 एंड दिस इज द OH। पर्टिकुलर यहां जब भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 4332 443 केल्विन, तो उस पोजीशन में नियोपेंटाइल अल्कोहल के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से OH, तो यहां फॉर्मेशन होगा आपके पास में CH3, ये हो जाएगा आपके पास में CH3 और ये हो जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये आपके पास में CH डबल बॉन्ड CH2 और एक पॉसिबिलिटी होगी आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये दोनों एल्कीन आपके पास में बनेंगी, जिसमें से पर्टिकुलर एक के लिए होगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, एक के लिए होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, जहां पर्टिकुलर ये वाला आपके पास में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में और ये आपके पास में माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्मेशन होगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, सॉरी 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन एंड दिस इज द 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो यहां मेजर प्रोडक्ट 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन होगा वाटर के रिमूवल से। ऐसा क्यों? तो पर्टिकुलर इस बात को हम मैकेनिज्म से समझे। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप वही सेम ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन, तो यहां पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2OH नियोपेंटाइल अल्कोहल, जिस पर H प्लस अटैक करेगा, ये H प्लस कहां से आया? H2SO4 से, सो ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन CH3 CH2OH 2 और ये प्लस लॉन पे एक रह जाएगा, ये वाला स्टेप। सेकेंड स्टेप में बात करें तो पर्टिकुलर CH3 ये CH2OH2 प्लस है, जो कि यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 ये प्लस और ये H2
के बाहर निकलने से। इसी के बी स्टेप की बात करें तो 1 2 शिफ्ट होगा कुछ इस टाइप से, CH3 स्टेबिलिटी के लिए, CH3 ये आ गया आपके पास में CH3 और ये CH2 और ये कर दिया आपने CH3 पर्टिकुलर CH2 प्लस, सॉरी CH2 और ये प्लस, ये आपके पास में नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन। यहां 1 2 शिफ्ट होगा मिथाइल का, जिसको हम रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू ये CH2 यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पर्टिकुलर यहां शिफ्ट करेगा, फॉर्मेशन होगा CCH3 CH2 एंड CH3 पॉजिटिव, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि अपने आप में स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरह काम करता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा आगे जानेंगे, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें और हर एक मैटर को ढंग से समझें। क्योंकि कहा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में केवल एक ही है आपके पास में, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू अल्कोहल एज अ बीटा एलिमिनेशन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो आपके पास में स्टेप के लिए क्या होगा ध्यान दें। क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस पोजीशन में आपके पास में थर्ड स्टेप में कुछ इस टाइप से होगा रिएक्शन कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ गया आपके पास में पॉजिटिव CH2 एंड CH3। इस पोजीशन में इसको हम कुछ प्रकार से ले लें, स्पेस कम है इसलिए। थर्ड स्टेप में कुछ इस प्रकार से CH3C CH3 पॉजिटिव CH2 एंड CH3 यहां से अपना एक हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो इस पोजीशन में आपके पास फॉर्मेशन होगा CH3 और ये आ गया आपके पास में डबल बॉन्ड CH3। और अगर हाइड्रोजन यहां से रिलीज होने की बजाय पर्टिकुलर हम बात करें तो इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं है, ये वाली एल्कीन स्टेबल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 और 3 है। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, आपके पास में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन एक स्टेबल एल्कीन बनेगी जो कि ऑलमोस्ट 80% बनती है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। वो एल्कीन स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ज्यादा अमाउंट में वही एल्कीन बनती है। दैट्स व्हाई हमने इसको 20% कहा और ये आपके पास में पर्टिकुलर 80% के फॉर्म में बनती है मेजर प्रोडक्ट। ये था आपके पास में पर्टिकुलर सी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। इसी में आगे बढ़ा जाए तो आपके पास में आता है डी पार्ट, जिसको हम पर्टिकुलर कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे यहां पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यहां ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में बात करें तो एक बात याद रखने की जरूरत है कि यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम क्या यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप काम में ले सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7, आप ले सकते हैं एसिडिक या बेसिक
और न्यूट्रल KMnO4, क्योंकि ये तीनों ही मीडियम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके अलावा आप काम में ले सकते हैं पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड HNO3 भी आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। बाकी जोन्स रिएजेंट वगैरह भी काम में लिए जा सकते हैं, बट इफेक्टिव आपके पास में K2Cr2O7 एसिडिक काम करेगा। इस रिएक्शन में बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, याद रखने वाली बात है, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक, थोड़ा सा स्पेस कम, तो यहां फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें यहां कार्बन का कोई चेंज नहीं होगा, मींस सेम कार्बन वाला एल्डिहाइड, सेम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पर बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन कम वाला होगा, एक कार्बन कम वाला होगा। इसी सीक्वेंस में आगे बात की जाए तो बात करेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल में पर्टिकुलर वही अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण से सबसे पहले ये एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये एल्कीन में चेंज होगा सेम कंडीशन में, और उसके बाद में ये कीटोन में चेंज होता हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके लिए क्या बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल सेम कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के थ्रू एल्कीन बनाएगा। इस एल्कीन के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, कीटोन यहां पर 1 कार्बन लेस होगा और फिर इससे जो प्राप्त बनेगा आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वो पर्टिकुलर 2 कार्बन लेस होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शन की बात करें तो ये आ गया आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल CH3CHO CH2OH, इथेनॉल ले लें हम 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन करवाया। तो ये ऑक्सीडेशन सबसे पहले एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में यहां से एक H आइसोलेट कुछ इस प्रकार से कर देंगे, ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ में H2O का फॉर्मेशन कर देंगे और अपने आप को चेंज कर लेंगे एल्डिहाइड में। ये आ गया आपके पास में इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा। इसी सीक्वेंस में पर्टिकुलर बात करें तो ये इथेनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है। सो ये अपने आप में ऑक्सीडाइज होकर के सेम कंडीशन में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा इथेनोइक एसिड। तो यहां कार्बन में कोई चेंज नहीं हो रहा है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपके पास में आ गया 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में प्रोपेन-2-ओल, प्रोपेन-2-ओल जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन करवाया आपने इसका सेम कंडीशन में, सबसे पहले ये कीटोन में चेंज होगा कुछ इस टाइप से CO और ये CH3। फिर इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं होता, विग्रस होता है। तो यहां 3 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे तो पर्टिकुलर CH3 COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCOH बाहर निकल जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन कम है अल्कोहल की कंपेयर में, यहाँ अल्कोहल में 3 कार्बन थे, यहाँ 2 ही कार्बन बन रहे हैं। यही बात हमने यहाँ पे की है। 2 डिग्री अल्कोहल से पहले कीटोन बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन लेस होगा। ये थी बात पर्टिकुलर 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के रिगार्डिंग। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा उसकी बात करेंगे कि वो सबसे पहले एल्कीन में चेंज होगा, फिर कीटोन में 1 कार्बन लेस और फिर 2 कार्बन लेस। यहां अगर कीटोन की बात करूं तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, देख सकते हैं दोनों CH3 सेम है,
अगर यहाँ एसिमेट्रिकल अल्कोहल जस्ट कीटोन होता तो क्या होता, या यूं कहें कि प्रोपेन टूओल की जगह ब्यूटेन टूओल होता तो क्या होता, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस मैटर को अच्छे से पढ़ें। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होगा, थ्री डिग्री अल्कोहल में अभी जस्ट बताया आपको कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस पोजीशन में वो ऑक्सीडाइज बाद में होगा, पहले डिहाइड्रेशन होगा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू, और किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उसे जाने और सीखें प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ इट्स टू इंपॉर्टेंट। विदाउट डूइंग दिस इट इज नॉट पॉसिबल। सो पर्टिकुलर 3 डिग्री अल्कोहल लेने से पहले हम डिस्कस कर लें, if there is ब्यूटेन टूओल, अगर ब्यूटेन टूओल हो तो आपके पास में यह आ गया CH3CHOH एंड CH2CH3, ऑक्सीडेशन करवा दे। ऑक्सीडेशन करवाया सेम एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7, तो यहां से H बाहर रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में H2O का फॉर्मेशन करके, और यहां अल्कोहल का फॉर्मेशन, कीटोन का फॉर्मेशन होगा CH3CO CH2CH3, मींस पर्टिकुलर ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन होगा कीटोन की फॉर्म में, ब्यूटेन 2 ऑल से। बात आती है फर्दर, अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहां एसिमेट्रिकल कीटोन है, देख सकते हैं दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन विग्रस होगा वही एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, बट यहां पॉपऑप्स रूल अप्लाई होगा। पॉपऑप्स रूल जो क्या कहता है पर्टिकुलर एसिमेट्रिकल कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में CO ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ होगा जिसमें कार्बन कम हो, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन के साथ जाएगा, बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, CH3CO एक O और एक H यहाँ से, CH3CO O और एक H यहाँ से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये थी बात आपके पास में पर्टिकुलर रिगार्डिंग टू योर जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में बात करें तो हम पर्टिकुलर ये ले लिया आपने 3 डिग्री अल्कोहल, देख सकते हैं पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सेम कंडीशन में एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ही ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका कुछ प्रकार से, ये H2O को रिमूव कर देगा और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CCH3, डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। इस 2 मिथाइल प्रोपीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दे, CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, वही 3 ऑक्सीजन काम में आएंगी, तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन बन जाएगा CH3CO CH3, और एक मॉलिक्यूल आपके पास में पर्टिकुलर HCOOH का रिमूवल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल में 1 2 3 4 कार्बन थे, कीटोन में यहाँ पर 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन लेस हो चुका है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो CH3CO CH3, बताया कीटोन का इजी वे में ऑक्सीडेशन नहीं होता, विग्रस होगा, तो इस पोजीशन में बॉन्ड का क्लीवेज होने से सेम कंडीशन में यहाँ CH3COOH
और HCOOH का फॉर्मेशन होगा। यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 2 कार्बन है, जबकि अल्कोहल में आपके पास में 1 2 3 4 कार्बन था, मीन्स 2 कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इट इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। ये थी बात पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन की कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सेम कार्बन, पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन वाला। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोन बनेगा। कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो 1 कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर ब्यूटेन टू ऑल हो तो नो डाउट वहां पॉप-ऑफ रूल का फॉर्मेशन होगा। पॉप-ऑफ रूल है क्या कि जब आप एसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ होगा जहां कार्बन लेस हो, या 1 है या 2 कार्बन है तो ये CO इस कार्बन के साथ चला जाएगा। इसी टाइप से 3 डिग्री अल्कोहल का पहले डिहाइड्रेशन होगा सेम कंडीशन में, एल्कीन बनेगी, फिर उस एल्कीन के ऑक्सीडेशन से 1 कार्बन लेस वाला कीटोन बनेगा और फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पर 2 कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम बात करना चाहें सेकंड रिएक्शन की, तो सेकंड रिएक्शन आती है आपके पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये अपने आप में आते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो केवल और केवल वही अल्कोहल देते हैं। अल्कोहल गिव्स हैविंग CH3CHOH। जिन अल्कोहल में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है केवल वही देते हैं। तो ये वाला कौन कौन से अल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं? नो डाउट CH3CH2OH देगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल भी देगा बिकॉज ऑफ इट एग्जिस्ट CH3CHOH। दोनों अपने आप में ये टेस्ट देंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो ये अल्कोहल भी जो कि 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में ब्यूटेन 2ऑल, ये प्रोपेन 2ऑल था तो ब्यूटेन 2ऑल भी ये वाला टेस्ट देगा क्योंकि CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तीनों अल्कोहल अपने आप में इस टेस्ट को देंगे। किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? हेलोफॉर्म क्यों कहा इसको पर्टिकुलर? क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू हेलोफॉर्म की फॉर्म में, जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर में हेलोल्केन एल्काइन में पढ़ चुके हैं, हेलोफॉर्म की फॉर्म में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए पर्टिकुलर इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा गया है। ये थी बात पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग सेकंड पार्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छे से पढ़ें ताकि आगे बढ़ा जा सके। बहुत ही सीरियसली लें क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी सीक्वेंस में हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट कैसे होगा, किस प्रकार से फॉर्म होगा, उसकी बात जाने। हेलोफॉर्म रिएक्शन बताया ना कि वो अल्कोहल देते हैं जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसी बात को समझे। ये आता आपके पास में हेलोफॉर्म के लिए हम काम में लेते हैं NaOH के 2 मॉलिक्यूल और हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा दें। हेलोजन को आप हेलोजन की फॉर्म में या तो आप ले सकते हैं क्लोरीन या आयोडीन। तो इस पोजीशन में यहाँ पे या तो Cl2 होगा या I2। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट NaX प्लस H2O सोडियम हाइपोहैलाइट का फॉर्मेशन होगा। इस सोडियम हाइपोहैलाइट के लिए पर्टिकुलर इथेनॉल ले लें CH2OH 2 ऑफ NaOX रिएक्शन करेगा, यहां से 2 ऑफ H 2 NaO के साथ रिएक्शन करके 2 ऑफ NaOH दे देंगे प्लस X2 हेलोजन यहां से बाहर निकल जाएगा और ये अपने आप को चेंज कर लेगा
CH3CHO में, इथेनॉल में। अगर वहां पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो पढ़ेंगे कि ये वाली हेलोफॉर्म रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसी को नेक्स्ट स्टेप के रूप में लेते हुए CH3CHO NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 ऑफ NaO 3H के साथ रिएक्शन करके 3 ऑफ NaOH बाहर निकाल देगा, प्लस रिमेनिंग 3X कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH3CHO का फॉर्मेशन होगा। और इस CH3CHO को आप NaOH के साथ ट्रीट करवा दें तो यहां से पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म बाहर निकल जाएगा, हेलोफॉर्म CHX3 और HCOONA बन जाएगा। ये हेलोफॉर्म। अगर आपने यहां पर Cl यूज किया है तो CHCl3 बनेगा क्लोरोफॉर्म, और अगर आयोडीन लिया तो CHI3 आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये थी बात आपके पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसे आप सीरियसली पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टिंग्विश में भी काम में आती है, एल्डिहाइड और कीटोन में, और 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में भी। इसी सीक्वेंस में एक लास्ट रिएक्शन की बात और करना चाहेंगे जो कि अपने आप में थर्ड पार्ट के नाम से जानी जाती है इसी रिएक्शन में, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। तो व्हाट इज दैट, लिसन मी केयरफुली, क्योंकि कहा ना अल्कोहल एक ऐसा चैप्टर है जिसपे अगर आपकी कमांड अच्छे से हो जाती है तो एल्डिहाइड और कीटोन आपके लिए काफी इजी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी काफी इजी होता है। तो इसी सीक्वेंस में थर्ड रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन में ही, एंड दैट इज द डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल थर्ड रिएक्शन के नेम से। थर्ड रिएक्शन आती है आपके पास में डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। Dehydrogenation means you can say removal of H2, हाइड्रोजन का रिमूवल। इस सीक्वेंस में पर्टिकुलर बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाए कुछ इस टाइप से, CH3CHO CH3CH2OH सॉरी, तो या तो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में इथेनॉल, तो यहां से कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर, हाइड्रोजन के रिमूवल से एल्डिहाइड बनेगा। इस रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश में भी काम में ले सकते हैं। एल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में भी काम में ले सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। इसी में 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो कुछ इस टाइप से H और ये OH, यू कैन सी सेम कंडीशन में H2 बाहर निकलते ही 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जनरली हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से पर्टिकुलर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण से पर्टिकुलर ये सिमिलर कंडीशन में, इन्हीं कंडीशन में यहां से H2O का रिमूवल कर देगा, और H2O का रिमूवल करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देख सकते हैं हर एक अल्कोहल से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में भी किया जाता है। ये था आपके पास में प्रोपेन 2 डिग्री अल्कोहल, इसे आप अच्छे से पढ़ें।
सो डियर केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर, ये था आपके पास में पर्टिकुलर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे आप हर एक टॉपिक को, हर एक मैकेनिज्म को आप बहुत अच्छे से पढ़े। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों का बार-बार धन्यवाद। लगभग 600 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं। टाइम पीरियड भी लगभग 550 घंटे के लगभग हो चुका है, 550 आवर्स तक, और व्यूअर्स भी काफी कुछ हो चुके हैं। ये अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।